Crime branch is on the spot. They are investigating the cause behind the blast that took place. Some reports suggest that it was a cylinder blast. However, a white powder-like substance has also been recovered. There is no certainty as to how the blast took place. It's about 2 hours that the blast took place. The police had received a call at 11:48 a.m. This explosion was reported from Prashant Vihar of Delhi's Rohini earlier today. Police teams along with the bomb squad and the fire services are at the spot. A high alert was sounded by the police in the wake of the blast when it had taken place outside the CRPF school as well, and we are now bringing you fresh visuals from the site of the blast. You can see heavy police presence there. This one was a low intensity blast, however, unlike the one that we witnessed last month at the CRPF school. However, one person has been injured in this blast. He is said to be in a critical condition. Police have cordoned off the Puri Road, beg your pardon, and Delhi Police Crime Branch and Special Cell team is present on the spot as of now. Let's also tell you, viewers, that forensic team has also reached the site of the blast. They are trying to ascertain what was the cause of the blast. Of course, you can see on your screens how the area has been cordoned off for the investigations. One person has been taken place. It is not certain as of now what is the nature of the blast that has taken place, but it is a concerning development given that it's coming just a month after a similar blast had taken place in Delhi's Prashant Vihar area in Rohini when the wall of a CRPF school was blown away with the blast. This one, of course, is a lower intensity blast. However, one person has been injured, and police teams, forensic team, the bomb squad are all present at the site of the explosion to determine the cause of the blast. My colleague Akhil from the ground brings us reports as to how this could be due to a cylinder explosion. However, there is no certainty and police statements are still awaited. Let's go across to Lomas, who's now joining us from the ground. Lomas, a very good afternoon to you. What more details are you picking up from the investigation so far? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं, अभी मैं प्रशांत विहार इलाके में हूं और ये वही जगह है जहां पर 11:48 में पीसीआर कॉल होती है कि यहां पर एक जोरदार धमाका हुआ है और धमाके के बाद यहां दिल्ली पुलिस की टीम और स्पेशल टीम यहां पे पहुंचती है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, लेकिन अभी तक जानकारी निकल के सामने नहीं आई कि धमाका कैसे हुआ और किसके द्वारा ये धमाका किया गया। हालांकि इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। आपको याद होगा कि एक सीआरपीएफ स्कूल के बाहर भी एक धमाका हुआ था जहां पे व्हाइट पाउडर मिला था। ये कहा जा रहा है कि यहां भी एक किस्म का व्हाइट पाउडर मिला है और इसको जांच किया जा रहा है और जांच करके देखा जा रहा है। पहले आपको जानकारी दे दूं कि यहां पर जो फोरेंसिक की टीम है वो पहुंच चुकी है, उनके द्वारा जांचा जा रहा है और साथ ही जो बम स्क्वाड की टीम है वो पहुंची हुई है। घटना के तुरंत बाद जैसे ही पीसीआर कॉल हुआ उसके बाद ही यहां पे जो बम स्क्वाड की टीम थी वो पहुंच चुकी थी और आसपास के इलाके में, क्योंकि ये रहायशी इलाका है पूरा, यहां पे आम लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बम धमाके के बाद जो आसपास के लोग थे काफी डर गए, काफी सहम गए, क्योंकि उसके जस्ट जहां धमाका हुआ उसके जस्ट यहां पे बगल में एक पार्क है और पार्क के बगल में जो ये धमाका का स्पॉट है और उसके बाद जो आसपास पार्क में टहल रहे थे लोग काफी डर गए, काफी सहम गए और आसपास के जो लोग जिन्होंने ये धमाके की आवाज सुनी वो सड़क पे आ गए। हालांकि कहा जा रहा है कि जो जल्द ही इस पूरे मामले को जल्द से जल्द खंगाल लिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली जाएगी। और आपको ये भी जानकारी दे दूं, जो सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाका हुआ था आपको याद होगा और उस की भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन उसमें निष्कर्ष कुछ निकला नहीं है और लेकिन उसके बाद इस तरह का धमाका होना कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा करता है। दिल्ली में 2 बड़े धमाके होना कहीं ना कहीं ये सवाल निशान खड़ा करता है और अभी यहाँ पर लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है और आसपास का जो पूरा इलाका
आसपास का जो पूरा इलाका है उसको बंद कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जिससे आम लोग अंदर ना प्रवेश कर सके और यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको बाधित ना किया जा सके। और यहाँ पर मैं अपने विजय को बोलूंगा कि केवल उस स्पॉट को दिखाए, वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसको वो दिखाते रहे, जिससे कि मालूम चल पाए कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरीके से की जा रही है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉरेंसिक की टीम है वो पहुंची हुई है और इसके बाद जो जैसे ही PCR कॉल होती है उसके बाद फायर की टीम, पुलिस की टीम और साथ ही स्पेशल दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंच जाती है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंच जाती है और उसके बाद यहाँ पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है और यहाँ पे जो आम लोगों को इस इलाके में आने और जाना नहीं दिया जाता है। और आपको जानकारी ये दे दें कि जो PCR कॉल होती है वो 11:48 में होती है और उसके बाद यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के जांच करने का काम यहाँ पर किया जाता है। और एक बार मैं अपने विजय को बोलूंगा कि 360 एंगल में पूरी तस्वीर दिखाए कि ये इस पूरे इलाके की। यहाँ पे देखिए तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हुए हैं और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अपना इन्वेस्टिगेट कर रही है। यहाँ पे फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है और उनके द्वारा यहाँ पे जांच करने का काम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो स्पॉट है वो पार्क से सटा हुआ है और यहाँ पर जो तमाम अधिकारी है उस स्पॉट के पास पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा यहाँ पे खंगाला जा रहा है। देखिए वहाँ पे जो फॉरेंसिक की टीम है लगातार सैंपल उनके द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है और इस सैंपल को फिर लैब में भेजा जाएगा और जांचा जाएगा। जो CRPF स्कूल के बाहर जो धमाका हुआ था और जो ये धमाका है, क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है, कोई दोनों जो धमाके हुए थे क्या दोनों धमाके एक जैसे हैं, ये जांचने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। देखिए जो व्हाइट स्पॉट कई जगह यहाँ पे हैं उनको देखा जा रहा है और देखिए फिलहाल क्योंकि पुलिस के द्वारा पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरे इलाके को यहाँ पे घेर दिया गया है और आसपास के लोग से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आप लोग यहीं पे रहते हैं? आपने धमाके की आवाज सुनी थी? हमने बस यहाँ पे अभी ये सुना है कि यहाँ हल्का हल्का पाउडर इधर तक आया है। अच्छा, व्हाइट पाउडर यहाँ? हाँ जी। अच्छा, हल्का फुल्का, ऐसा कोई मतलब बहुत ज्यादा कोई ऐसी आवाज नहीं आई थी, हल्का फुल्का ही था। हल्का फुल्का था लेकिन व्हाइट पाउडर गिरा है? हाँ जी, बस थोड़ा सा दूर तक यहीं तक है। देखिए हम जो बता रहे थे क्योंकि व्हाइट पाउडर उस धमाके में भी लोग जो इन्वेस्टिगेशन की टीम थी उन्होंने सैंपल इकट्ठा किया था व्हाइट पाउडर का और यहाँ पे भी कहा जा रहा, हमने दिखाने की कोशिश की, मेरे विजय लगातार दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर और कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आप लोग यहीं रहते हैं? तो आपने धमाके की आवाज सुनी थी? बिल्कुल जी, बहुत ही तेज ब्लास्ट था, बहुत जबरदस्त, थोड़ा भी नहीं, बहुत जबरदस्त। हमारी तो पूरी बिल्डिंग हिल गई है वाली। आपके घर के सामने ही हुआ? यही घर है, घर के सामने ही हुआ है। बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे मतलब छत गिर गई, इतना तेज ब्लास्ट हुआ। क्या समय हो रहा होगा? 11:48 बताया जा रहा है। नहीं 35, 11:35 11:35 का टाइम था। तो बाहर निकल के डर गए होंगे, बाहर निकल के देख रहे होंगे? पूरा अंधेरा छा गया, इतना धुआं उठा है पूरा का पूरा, हमारे ये घरों तक आए हुए व्हाइट पाउडर सारा उड़ के। जो चश्मदीद है जिनका घर है इस धमाके वाली साइट पे, उनका कहना है कि काफी जोरदार धमाका था, व्हाइट पाउडर पूरा उड़ के यहाँ पे आया है। और एक बार मैं फिर जो विजय मेरे संतोष उनको बोलूंगा कि स्पॉट दिखाएं और जो कि फॉरेंसिक की टीम लगातार ही वहां पर सैंपल इकट्ठा करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। और व्हाइट पाउडर मैं एक बार बोलूंगा कि संतोष जी को मैं बोलूंगा कि एक बार वो व्हाइट पाउडर दिखाएं। ये जो व्हाइट पाउडर कह रही हैं कि उड़ के आया है, ये व्हाइट पाउडर बताया जा रहा है, ये व्हाइट पाउडर है। और वहां पे भी जहां पर ये धमाका हुआ है वहां पे भी कई व्हाइट पाउडर के स्पॉट हैं और वहां पे भी वो व्हाइट पाउडर उड़ के गिरे। और आपको याद होगा CRPF स्कूल के बाहर जो धमाका हुआ और उस धमाके के बाद भी कई सैंपल इकट्ठा किए गए थे व्हाइट पाउडर के और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है और अभी भी उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन उसमें भी कुछ निकल के सामने नहीं आया। और उसी प्रकार प्रशांत विहार के पार्क के पास ये धमाका होता है, आसपास के लोग काफ़ी डर जाते हैं, काफ़ी सहम जाते हैं और इनका कहना है कि धमाका काफ़ी जोर से होता है और इतनी तीव्रता से होती है कि उनको बाहर आकर के देखना पड़ता हुआ क्या है। उनको पहले तो लगा कि किसी के घर में सिलेंडर फटा, लेकिन उसके बाद वो देखते हैं यहाँ पे पुलिस की टीम पहुँचती है, जो तमाम इन्वेस्टिगेशन की टीम पहुँचती है और यहाँ पर उनके द्वारा जांचने का काम किया जाता है। और अभी भी जो जांच पड़ताल है, जो इन्वेस्टिगेशन
की जा रही है वो अभी तक जारी है और ये देखने का काम किया जा रहा है कि दोनों धमाकों में क्या समानताएं हैं, दोनों धमाके क्या सिमिलर हैं, ये देखने का काम किया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो धमाके की तीव्रता थी, जो फ्रीक्वेंसी थी, उसको मापने का काम किया यहाँ पे किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि एक के बाद एक दिल्ली में 2 धमाके होना एक सवालिया निशान खड़ी करती है और इन्वेस्टिगेशन हालांकि जारी है। और आसपास के जो लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धमाके की आवाज से वो काफी डर गए, काफी सहम गए और उन जो सामने वाली बिल्डिंग थी वो काफी हिल गई। और इसके बाद आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाके की तीव्रता कितनी होगी। और हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। यहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची हुई है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है, साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पहुंची हुई है, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है, साथ ही यहाँ पे फोरेंसिक की टीम पहुंची हुई है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम लगातार काम कर रही है, जो फोरेंसिक की टीम है वो लगातार काम कर रही है और उनके द्वारा पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और आम लोगों को इस इलाके में घुसने की मनाही है। और साथ ही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द वो सीसीटीवी जो पूरे इलाके में सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके डीवीआर भी खंगालने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। जी लोमस, क्या वहां पे आसपास कोई सीसीटीवी है जिसका फुटेज मिल पाया हो, जिससे पता चल पाया हो कि एग्जैक्टली ब्लास्ट हुआ कैसे? क्या किसी ने ये ब्लास्ट का जो मटेरियल होगा उसे प्लांट किया है, कोई बॉम्ब प्लांट किया है, या फिर ये गलती से कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है? तो क्या सीसीटीवी का कोई फुटेज अभी तक लिया गया है? देखिए, फिलहाल क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो इन्वेस्टिगेशन वाली टीम है वो लगातार ही सब जितने भी घर हैं जो कि इस स्पॉट से करीब हैं और अगर उनमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो उनके डीवीआर खंगालने का काम जो इन्वेस्टिगेशन वाली टीम है उनके द्वारा की जा रही है। हालांकि आपने देखा कि जो जिन महिला से हमने बात की उन्होंने बताया कि जो बम धमाके की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि वो घर से बाहर निकल आई, उनको लगा कि क्या यहाँ पे किसी का सिलेंडर किसी घर में तो नहीं फट गया, तो वही देखने के लिए वो बाहर निकली तो यहाँ से ये पार्क के पास से उनको धुआं आता हुआ दिखा। वो काफ़ी डर गई, काफ़ी सहम गई। एक बार मैं फिर से महिला से बात करने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। मैम एक बार फिर बताइएगा मैम, आप लोग घर में ही मौजूद थी? हाँ जी, हम घर में ही मौजूद थे और 11:35 के आसपास की बात है। बड़ी बुरी तरीके से ब्लास्ट हुआ, पूरी छत हिल रही थी। यही सोचा कि मे भी किसी के यहाँ शादी है शायद। बाहर आके देखा तो काफी धुआं हो रखा था, चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए थे, यही सब था। बिल्कुल। घर में कौन कौन था? आप थी और सास ससुर थे, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, 3 जने थे हम घर में। देखिए, यहाँ पे जो आई विटनेस है और कह सकते हैं कि घर क्योंकि करीब है तो आपका घर यहाँ पे है तो सीसीटीवी भी लगा होगा बाहर की साइड? नहीं लगा हुआ है सीसीटीवी तो, लेकिन आएगा नहीं, ये इनमें नहीं आएगा क्योंकि ये गली के अंदर हो गया, बाहर उस तरफ हुआ है सामने। देखिए, यहाँ पे जो आई विटनेस है उनका कहना है कि धमाके की आवाज़ ज़रूर आई और उसके बाद वो काफ़ी सहम गए, काफ़ी डर गए और वो बाहर निकल करके उनके द्वारा देखने का प्रयास किया गया। हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पे जारी है और लगातार जो यहाँ इन्वेस्टिगेशन की टीम है यहाँ पे पहुंची हुई है, उनके द्वारा सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है। एक एक करके बारीकी से ये सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है जिससे कि यहाँ पर जो ब्लास्ट के समय जो मटेरियल हो वो बारीकी से जमा किया जा सके और उसके बाद उनको लैब में भेजा जा सके और पुराने सैंपल से, क्योंकि आपको याद होगा जो सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाका हुआ था उसके सैंपल से मैच करवाया जा सके और उसके बाद ही मालूम चल पाएगा कि दोनों धमाके में सिमिलरिटी क्या थी, दोनों धमाके क्या एक समान हैं और क्या एक ही के द्वारा ये करवाए गए। हालांकि आपने देखा था उसका जब सीआरपीएफ स्कूल का जो सीसीटीवी निकल के सामने आया था वो काफ़ी तेज़ धमाका था और उस धमाके के कारण काफ़ी शीशे जो आसपास के दुकानों के शीशे थे वो टूट के बिखर गए थे, गाड़ियों के शीशे बिखर गए थे और उसी तरीके से ये भी यहाँ पे भी धमाका हुआ है। धमाके होने के बाद लोग काफ़ी सहम गए, काफ़ी डर गए, लोग यहाँ पर बाहर आ गए और लोगों ने देखा कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा हो गई और जमा होने के बाद लोगों ने आज पुलिस को जानकारी पीसीआर कॉल पे जानकारी दी और पुलिस यहाँ पे मौके पे पहुंची और मौके पे पहुंचने के बाद यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और आप देख सकते हैं ये धमाका पार्क के पास हुआ है जहाँ पे
लोग सुबह के समय यहाँ पे टहलते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये धमाका 11:30-35 के करीब हुआ है और उसके बाद ही पीसीआर कॉल की गई थी और अभी भी यहाँ पे जांच की टीम लगातार की जा रही है, जांच की जा रही है। टीम पहुंच चुकी है और इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा की जा। Loma sir, requested to hold on. We've accessed some more visuals from the site of the blast that took place at this park wall. We can see how a huge plume of smoke erupted after the blast took place in Prashant Vihar. This was near a PVR mall there in Prashant Vihar, near the PVR cinema at Prashant Vihar near Bansi Suite, where the blast took place, leading to a huge plume of smoke after the explosion. I want to come to you back on this, Prashant. Lomas, sorry. नए विजुअल्स आए हैं लोमस, हमारे पास पता चल रहा है कि ब्लास्ट की क्या इंटेंसिटी है। बहुत बड़ा धुआं ब्लास्ट के बाद हुआ, क्या कुछ डैमेज का भी पता चल पाया है? देखिए, आपको जानकारी दे दें कि कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति घायल हो गया, उसको छोटी मोटी चोटें जरूर आई है और उसको अस्पताल में कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया है और उसके बाद ही मालूम चल पाएगा कि क्या हुआ था, क्योंकि उस व्यक्ति को मालूम होगा कि यहाँ पे किस तरीके से धमाका हुआ। हालांकि कुछ यहाँ पे फुटेज निकल के सामने है जिसमें कि काफ़ी मात्रा में वाइट पाउडर दिख रहे हैं और वो वाइट पाउडर का सैंपल यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए, यहाँ फॉरेंसिक की टीम लगातार ही काम कर रही है। मेरे विजय संतोष लगातार एक एक बारीकी से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि